وہ ایک ایسا دور تھا جب خانہ کعبہ بتوں سے گھرا ہوا تھا۔ ہر طرف شرک کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے ہی تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکتے، ان سے دعائیں مانگتے اور کہتے، اے ہمارے معبود، ہمارے نذرانے قبول کر، تو ہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مکہ کے سردار جیسے ابو جہل اور ابو لہب غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام بلند کیا تو یہ سردار بھڑک اٹھے۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہتے، محمد کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے اور انہیں بے حقیقت قرار دیتا ہے۔ انسانی معاشرہ سرداروں کے اثر میں جکڑا ہوا تھا اور مکہ گمراہی کی گہری کھائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر اسی ماحول میں ایک ایسی مخلوق بھی موجود تھی جو نہ قریش کے دباؤ میں تھی، نہ سرداروں کے غرور میں گرفتار۔ وہ صرف سچ کی تلاش میں تھی۔ وہ تھے جنات۔ جب قرآن کی آواز فضا میں گونجی تو ان کی تلاش اپنے انجام کو پہنچی۔ ہدایت کا دروازہ ان پر کھل گیا اور وہ حق کو پہچان گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر اندھیرا اپنے عروج پر تھا، صرف رات کا نہیں بلکہ دلوں کا اندھیرا۔ کعبہ کے صحن میں سجدے تو ہوتے تھے مگر اللہ کے لیے نہیں۔ پیشانیاں جھکتی تھیں مگر دل بتوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی کے سامنے جھک کر کہتے، یہی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہماری دعائیں سنتے ہیں اور یہی ہمیں اولاد عطا کرتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ یہ وہ چیخ تھی جو ہر گلی، ہر بازار میں سنائی دیتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھ کر بے بسی سے آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ مرد اپنے خود ساختہ خداؤں کے سامنے چیخ چیخ کر فریاد کرتے، رحم کرو، اے ہمارے معبودو، ہم پر رحم کرو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر آسمان خاموش تھا۔ انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا تھا۔ وہ مٹی اور پتھر سے تراشے گئے بتوں کے سامنے جھک چکا تھا۔ کسی کے سامنے سونے کی زنجیریں رکھی جاتیں، کسی کے آگے آٹے کے تھیلے، کسی کے حضور دودھ کی مشکیں پیش کی جاتیں، اور کوئی نادان اندھی عقیدت میں اپنی ہی بیٹی کو قربان کر دیتا، صرف اس امید پر کہ شاید اس کا معبود خوش ہو جائے۔ اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، تم ہی ہمارے سب کچھ ہو۔ کیا انسان واقعی اتنی پستی میں گر سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کے آس پاس جو دنیا کا سب سے مقدس مقام تھا، سب سے گندی عبادتیں ہونے لگی تھیں۔ انسان کی عزت پامال ہو رہی تھی، غریبوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انسان نے انسان کو ہی خدا بنا لیا تھا۔ جب ظلم اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ پھر ایک دن اسی سرزمین مکہ میں روشنی اتری۔ غار ہرا کی خاموشی میں آسمان سے ایک صدا گونجی، اقرا۔ زمین جیسے لرز اٹھی، فضا بدل گئی اور آسمان کے پردے نور سے جگمگا اٹھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ یہ روشنی کا پہلا قطرہ تھا جو صدیوں کی تاریکی میں گر چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بلند کی، ایک ایسی آواز جس نے پتھر دل قریش کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ۔ مگر جواب میں چیخیں بلند ہوئیں، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، یہ ہماری روایات کو چیلنج کرتا ہے، ہمارا نظام تلوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ان کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، صرف تکبر تھا۔ وہ حیران تھے، یہ کیسا نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے سامنے سوال اٹھا رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ یہ ہمارے محافظ ہیں۔ یہ غرور سے بھری آوازیں مکہ کی فضا میں گونجتی تھیں، مگر ایک رات سب کچھ بدلنے والا تھا۔ مکہ کی تنگ گلیوں سے نکل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند وفادار صحابہ خاموشی سے شہر سے باہر نکلے۔ مقصد تھا ایک دور دراز قبیلے تک پہنچنا، حق کا پیغام پہنچانا۔ رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ دنیا سو رہی تھی مگر تقدیر جاگ چکی تھی۔ ایک صحابی نے آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آج چاند کچھ زیادہ ہی روشن لگ رہا ہے۔
मगर हकीकत ये थी, चांद खुद उस चेहरे मुबारक से रोशनी ले रहा था। चांदनी रीत पर बिखर रही थी और रीत पर पड़ने वाले कदम तारीख के औराक पर नक्श हो रहे थे। उन्हें खबर न थी कि इस रात उन्हें कौन सुन रहा है। या माशरल जिन्न उनसितू। इसी रात, इसी सुनसान सहरा में एक और मखलूक भी भटक रही थी। वो मखलूक जिसे इंसान देख नहीं सकता, जिन्नात। समझते हैं कि भटकना सिर्फ इंसानों का मुकद्दर है, मगर उस रात जिन्नात भी सच की तलाश में थे। वो हैरान थे, परेशान थे, और एक सवाल उनके दिलों में जल रहा था, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आसमान बदल चुका था। आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पहरे सख्त हो चुके थे। जो जिन ऊपर जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करता, वो शोलों से मारकर वापस फेंक दिया जाता। वो बेचैनी से कहते, हम पहले आसमान से खबरें सुन लेते थे, अब क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या जमीन पर कोई नई हकीकत उतर रही है? पहले उनके लिए आसमान खुला था। वो ऊपर जाते, फरिश्तों की सरगोशियां सुनते और वापस आकर जादूगरों, नजूमियों और काहिनों को खबरें देते। मगर अब हर रास्ते पर आग के मुहाफिज खड़े थे। एक नया कानून नाफिज हो चुका था। यह आम तब्दीली नहीं थी, ये वही का आगाज था। और जब वही नाजिल होना शुरू होती है तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कायनात खुद इस लम्हे की हिफाजत करती है, और आसमानी राजों की हिफाजत पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई थी। जिन्नात के एक गिरोह ने बेचैनी से कहा, जमीन पर जरूर कोई अजीम वाकया हो रहा है, ऐसा वाकया जिसने हमारी दुनिया बदल दी है। दूसरे ने कहा, हमें जानना होगा, हमें तलाश करनी होगी, वो कौन है जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद हो गए। तीसरे ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, बिखर जाओ, जमीन के हर कोने में फैल जाओ और हकीकत को तलाश करो। और फिर जिन्नात का काफिला जमीन में फैल गया। वो नजर नहीं आते थे, मगर करीब थे। इंसानों के साथ, उनके आसपास, उनकी सांसों के बीच, खामोशी से देखते, सुनते, महसूस करते। रात गुजरती रही, सफर जारी रहा, यहां तक कि फजर से कुछ लम्हे पहले अल्लाह ने वो घड़ी लिख दी जिसने इंसानों और जिन्नात दोनों की तारीख बदल देनी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। रेत नर्म थी, हवा में खनकी थी, और सहाबा खामोशी से सफ में खड़े हो गए। ये रात और दिन के दरमियान का लम्हा था, वो लम्हा जब दुआ सांसों से भी ज्यादा आहिस्ता निकलती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। कुरान की आवाज फजा में फैलने लगी, मगर यह सिर्फ आवाज नहीं थी, ये रूहों पर उतरने वाली हकीकत थी। जिन्नात बेइख्तियार इस आवाज की तरफ खींचे चले आए, जैसे प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है। ये कोई आम कलाम नहीं था, ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। ये कलाम था कायनात के खालिक का। जिन्नात लरज़ गए, हम उनकी दुनिया जैसे रुक गई, सांसें थम गईं। वो एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। ये क्या है? ये दिल को क्यों चीर रहा है? ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये जरूर आसमान से नाजिल हुआ है। पहली बार जिन्नात बेबस हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी ताकत है जो उन्हें रोक रही है, बांध रही है, झुका रही है। वो कौन सा राज है जिसकी हिफाजत के लिए आसमान बंद कर दिए गए? और सबसे बढ़कर वो कौन है जिसकी आमद से पहले आसमान की छत पर इतनी सख्त पहरादारी लगा दी गई? आखिर कौन सा नूर है जो जमीन पर उतर चुका है, जिससे शैतान और जिन्नात की दुनिया लरज़ गई है? वो और करीब आए, और फिर उन्होंने देखा एक इंसान, मगर आम इंसान नहीं, एक पाकीज़ा वजूद, मिट्टी पर अपने रब के सामने सजदा रेज। और उसकी जबान से वो कलाम जारी था जो पहली बार जमीन पर पढ़ा जा रहा था, जो आसमानों से उतरा था और जिसने जिन्नात के दिलों को हिला कर रख दिया था। ये इंसानों का कलाम नहीं, ये तो आसमानों जैसा लगता है। इसी रात जिन्नात को अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया। उन्हें समझ आ गया आसमान क्यों बंद किए गए थे, आग के पहरे क्यों लगा दिए गए थे,
सितारे क्यों शोलों की तरह बरसने लगे थे? क्योंकि अब हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर चुकी थी। जिन्नात के कदम जो रेत पर जमे हुए थे जैसे पत्थर बन गए हों, उनके वजूद से सांसें जैसे छिन गई हों। सहराए नखला की गहरी तारीकी में वो नूरानी अल्फाज बह रहे थे जो पत्थरों को नरम कर देते हैं, दिलों की जंजीरें तोड़ देते हैं और तकदीर बदल देते हैं। ये वो कलाम था जो जिन्नात की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो जिन्नात जो हजारों साल तक आसमानों की खबरें चुरा कर लाया करते थे, आज पहली बार जमीन पर एक ऐसी हकीकत सुन रहे थे जो खबर नहीं थी बल्कि सच था, नूर था, हिदायत थी, पाकीज़गी थी और वो सब कुछ जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। हर आयत उनके दिलों में उतरती जा रही थी। वो सरगोशी करने लगे, ये हमारे अंदर कुछ तोड़ रहा है, जैसे सीने का कोई बंद दरवाजा खुल रहा हो। कुरान की एक एक आयत उनके वजूद में उतरती गई और वो पीछे हटना चाहते थे, मगर उनके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों। उन्होंने कहा, हमने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, न आसमान में न जमीन पर। यह आवाज नहीं, ये रोशनी है। आखिरकार वो लम्हा आया, तिलावत खत्म हुई और पूरी वादी पर एक गहरी खामोशी छा गई। लेकिन यह खामोशी आम नहीं थी, इसमें सुकून भी था और लर्जिश भी, नूर भी था और हैरत भी। अब जिन्नात समझ चुके थे, उनके तमाम सवालों का जवाब मिल चुका था। आसमान इसलिए बंद किया गया था क्योंकि जमीन पर एक अजीम वाक़या रूनुमा हो चुका था। अब वो बेइख्तियार बोल उठे, चलो जल्दी लौटो, अपनी कौम को बताना है कि जमीन पर क्या उतर चुका है। वो तेजी से वापस पलटे, रेत पर दौड़ते हुए, हवा के झोंकों की तरह। दिलों में एक ही जुमला गूंज रहा था, हमने एक अजीब कुरान सुना है। तुम आसमान के दरवाजे बंद होने का सबब पूछते थे, हमें मालूम हो गया है। अरब में अल्लाह का रसूल आ चुका है, उसका नाम मोहम्मद है, वो सच्चे नबी हैं। वो जिन्नात जो कभी तकब्बुर के पहाड़ों पर खड़े थे, आज कुरान के सामने झुक चुके थे। उनकी जिंदगी का महवर जो कभी ताकत और चालाकी था, अब बदल चुका था। यह कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी हिदायत बनकर आया था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई तो जिन्नात खामोशी से एक दूसरे को कहने लगे, खामोश रहो, गौर से सुनो, ये वो कलाम है जो हमने कभी नहीं सुना। फिर वो करीब आए और अर्ज किया, ऐ मोहम्मद, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो दिलों को बदल देता है। हम इस पर ईमान लाते हैं और गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी कौम की तरफ वापस जाओ और उन्हें खबरदार करो और उन्हें इस अल्लाह की तरफ बुलाओ जो तुम्हारा और मेरा रब है। फिर वो जिन्नात वादी नखला से रुखसत हो गए और अपनी कौम में जाकर कुरान की दावत देने लगे। और यही वो वाक़या है जिसके बाद दुनिया में मौजूद बहुत से जिन्नात ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए। अगर आपको ये रूहानी और ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि अच्छी बात बांटने से दिल भी रोशन होते हैं और सोच भी। ऐसी मज़ीद ईमान बढ़ाने वाली कहानियों और वाक़यात के लिए को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए, हमें हक़ को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो सच्चाई को सुनकर उसकी पैरवी करते हैं। आमीन।